Okay, so we are going to start group 7 now, बच्चों. Group 7 of the periodic table, right? Group number 7 of the periodic table, right? So group number 7 को देखते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है बच्चों? सर हैलोजेंस. हैलोजेंस. उसके अलावा सर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स. माशाल्लाह. और उसके अलावा गैसेस. It has 7 valence electrons. It has 7 electrons on the outer shell. Yes, this is what I want. Very good बच्चों कि ये तो नॉन मेटल है. दैट्स वेरी गुड कि आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कौन कौन से टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि राइट हैंड पे नॉन मेटल्स मौजूद हैं और ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स. दैट्स परफेक्ट. उसके अलावा किसी ने और भी कुछ बताया था कि क्या ग्रुप 7 में नॉन मेटल्स हैं और हैलोजेंस, राइट? इनका नाम होता है हैलोजेंस. दैट्स वेरी गुड. दे आर हैलोजेंस. वेरी गुड. नाउ अब किसी ने मुझे बताया, मेरे ख्याल से अफीफा ने बताया कि ग्रुप नंबर 7 का मतलब है they all have 7 valence electrons. They all have 7 valence electrons. यानी कि आखिरी शेल में इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 7. राइट? राइट सर. ओके, तो अब मुझे बताया जा रहा कि अगर ग्रुप 7 का है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या होगा बच्चों इसका? -1. Yes, they will be -1 because they want to be like noble gases. They want to complete their electronic configuration like noble gases. So they will receive 1 electron and become what? -1 charge, right? Yes, sir. Okay. Yes, so sir. if you talk Yes, about sir. the Yes, elements present in group number 7, if you talk about elements present in group number 7, so they will be like, the first one will be fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, and astatine. Right, bacho? We have these Yes, 5 elements that are very famous in group number 7: fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine that we need to use over here. Before going somewhere else, we need to start with physical properties of these elements. If you remember, bacho, group number 1 was alkali metals, right? And these are actually halogens, right? If you talk about metals and non-metals, so there is a difference in metals and non-metals states, right? Metals are solids, and we know that group 1 metals are soft solids, right, bacho? Yes sir. Right sir. And what about these? These are having different states. For example, if you talk about fluorine, so it will be gaseous. If you talk about chlorine, so it will be gaseous. If you talk about bromine, so it will be liquid. If you talk about iodine and astatine, so they are solid, right? So you can say that their state changes from gas to liquid to solid. So we are not talking about states over here. So if you want to write, so you can write mostly are, you can say that they are mostly gases, right? उसके बाद liquid, उसके बाद solid है ना. तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. Otherwise, there is no need for this. We will write this in the trends, right? तो सर हम ये कह सकते हैं ना सर कि देयर जो है स्टेट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. Yes, we will write this in trends, right? तो down the group के बाद हम trends में करेंगे. अभी physical properties में कोई एक बात लिखनी थी तो वो हम नहीं लिख पाते क्योंकि ये सारी चीजें हैं. अब metals तो सारे solid होते हैं. यहाँ पर difference आ रहा है तो इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं. उधर हमने पढ़ा था कि metals have low melting and boiling point, और वो जो low melting boiling point था ना वो भी 9800 तक था. इतना भी low नहीं था कि negative में चला जाए, ठीक है ना? और इनका उससे भी ज्यादा low होगा. So you can say that they have very low melting and boiling point. They have very low melting and boiling point, right, bacho? And if you talk about their densities, so they have low densities as well. They have very low densities as well. तो इनकी densities भी क्या होंगी आपके पास? कम होंगी, ठीक है ना? And very important thing for these elements are they are diatomic. They are diatomic molecules. They are diatomic molecules. ये हमेशा diatomic form में exist करते हैं. For example, if you talk about fluorine, so fluorine is always F2 in the elemental state. अकेला होगा तो हमेशा F2 की फॉर्म में होगा, ठीक है? क्लोरीन अकेला होगा तो हमेशा Cl2, ब्रोमीन अकेला हमेशा Br2, आयोडीन हमेशा I2, एस्टाटीन हमेशा At2.
So in the elemental form they are always diatomic, right बच्चों? सर एक मेरा सवाल है Diatomic सर, ये जो इनकी डेंसिटीज हैं ये ग्रुप 1 वाले मेटल्स से भी कम है ना, मतलब दे आर वेरी लो? बहुत 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 कम है, मतलब कि अगर मेटल्स की डेंसिटी और इनको कंपैरिजन करेंगे तो इन बहुत कम होगी, ठीक है? सर सो दैट मतलब वो बात भी हमको वो करती है एक्सप्लेन के व्हाई दे आर गैसियस मोस्टली. Yes, you can say that, right? Are So there you can see colors? this. Yes, you can see this बच्चों के diatomic का मतलब क्या होता है? Two atoms together. Diatomic का मतलब क्या होता है? They are always existing two atoms together, right बच्चों? Yes, sir, right. Now, if you want to talk about conduction of electricity and the other things, so you need to remember this. These are non-metals, so they don't have delocalized electrons. So when they don't have delocalized electrons, so they are insulators, right? They are insulators. They cannot conduct electricity as well, right? तो अगर आप इसमें रीजन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं no delocalized electron, no delocalized electrons. So that is why they are not conductor of electricity, right? जी सर, राइट. Now, if you talk about their colors, someone call about colors over here. So you can see this, bacho. It is one of the trend. This is yellowish gas. This is yellowish gas. Chlorine is yellowish gas. If you talk about chlorine, so it is greenish yellow gas. This is greenish yellow gas. If you talk about bromine, so it will be reddish brown liquid. It will be reddish brown liquid. If you talk about iodine, so iodine will be, bacho, it will be purplish black solid. It will be purplish black solid. And if you talk about astatine, so this is black solid, right bacho? सर इनके हमें ये जो कलर्स हैं ये याद करने होते हैं, मतलब ये पेपर में जो है पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकते हैं. तो you need to keep learn these informations about group 7, so you need to remember few of that, right? और for example, if you talk about astatine, ठीक है, astatine का आप सोच सकते हो ब्लैक कलर है, और लेकिन क्लोरीन का याद करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगर आप छोड़ना चाहो तो फॉर सपोज अगर आपके पास बहुत कुछ है याद करने के लिए तो आपने आयोडीन का छोड़ दिया, दैट्स फाइन. मतलब हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन क्लोरीन का आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज क्लोरीन आपके पास जो है इलेक्ट्रोलिसिस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर कहीं दूसरी किसी भी चैप्टर में कहीं ऑब्जर्वेशन आती है क्लोरीन आपको बबल होती हुई नजर आती है, तो आपको इसकी ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए इसका कलर याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू. Now, for suppose now we are talking about trends. अगर हम trends की बात करें, so we know that trends is something which is following by the number of things, right? So over here we are talking about elements. So the elements are following what we need to discuss over here in trends. And now we are talking about group. So we need to see down the group. हम ये trends की बात करेंगे down the group. हम किसकी बात करेंगे भाई? Down the group की बात करेंगे कि नीचे आते वक्त क्या हो रहा है. Now the very first is very simple. बच्चों देखें, the state is changing from gas to liquid and then solid, right? Right, sir. जी सर, So you राइट. can say that state changes. You can say that state changes from gas to liquid to solid, right, bachcho? Yes, sir. Then the second one which you can see over here is color. What about the color? If you are सर watching कलर this- डार्क हो रहा है. Sir, Yes. color dark हो जा रहा है. yes, यस you सर, can कलर say इज that. गेटिंग डार्क. You can say that color become darker. You can say that color become darker down the group, right? Color become darker down the group. सही है Right. बच्चों? कलर का भी हमें पता चल गया कि डाउन द ग्रुप कलर क्या हो रहा है आपके पास, डार्कर हो रहा है, ठीक है? उसके अलावा अब आप एक बात मुझे बताएं बच्चों कि अगर गैस से लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, गैस का या सॉलिड का? Solid का sir. सॉलिड का. तो इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों? Increase, sir. इंक्रीज होगा. So you can say that melting point, boiling point, density,
they all are going to increase down the group. They all are going to increase down the group. सही है? जी सर ठीक है सर ठीक. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है रिएक्टिविटी. इफ यू टॉक अबाउट रिएक्टिविटी बच्चों, तो रिएक्टिविटी आपके पास डाउन द ग्रुप क्या होती है? रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. क्या होती है बच्चों? अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि ग्रुप 1 वाली जो रिएक्टिविटी थी वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी आपके पास? इंक्रीज हो रही है. यहाँ डिक्रीज हो रही है. ये अपोजिट है दोनों. ग्रुप 1 में इंक्रीज हो रही थी, ग्रुप 7 में क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी. ग्रुप 1 में इंक्रीज, ग्रुप 7 में डिक्रीज. ग्रुप 1 में इंक्रीज, ग्रुप 7 में डिक्रीज. यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एक दफा दोबारा बता देंगे. यस, ग्रुप 1 में जब आप नीचे जा रहे थे तो नीचे वाले एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हो रहे थे. अब ग्रुप 7 में जब आप नीचे जा रहे हो तो नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो कम रिएक्टिव हो गए. अच्छा सर, ठीक हो गया. और एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइलिटी. क्या बोलते हैं भाई? वॉलेटाइलिटी. वॉलेटाइलिटी भी डाउन द ग्रुप आपके पास क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है. वॉलेटाइलिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गैसेस को देखें तो गैसेस रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट हो रही है ना, होल्ड नहीं, मूव कर रही है, डिफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा उनमें ना. इसी तरह कुछ लिक्विड्स होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स, जैसे आपके पास पेट्रोल होता है, जैसे आपके पास थिनर होता है. वो अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखो और उनका कैप खुला छोड़ दो तो वो उड़ जाते हैं. रूम टेम्परेचर पे उनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, वो उड़ जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं. राइट? तो वॉलेटाइलिटी गैसेस में ज्यादा होती है, सॉलिड्स में नहीं होती. सही है ना? सॉलिड्स में नहीं होती, सॉलिड्स नहीं एवोपरेट होते रूम टेम्परेचर पे ना. तो सॉलिड्स में नहीं होती, गैसेस में ज्यादा होती है. तो आप देखें गैस से सॉलिड की तरफ जा रहा है तो वॉलेटाइलिटी यहाँ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. राइट? राइट सर. So these are the trends that you need to keep remember for group 7. सही है भाई? इसके अगर आप पिक्चर ले सकते हैं, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं. क्या कह रहे हो बेटे? सर वही कहते स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा जूम आउट कर दें. हाँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें. मैंने इसको अब करीब कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट बना के अपने पास याद कर सकें. सर जिस तरह ब्रोमीन है, ब्रोमीन में सर वो हम जब हम उसको किसी एटमॉस्फेयर में जब हम उसको रिलीज करते हैं तब उसकी स्टेट जब चेंज हो रही होती है तो हम उसको देख भी सकते हैं कि वो जो है लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रही है. कि ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन जी सर. बड़ा क्लियर चेंज होता है क्योंकि ब्रोमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है. तो रूम टेम्परेचर पे आप इसको देखोगे, जब आप ये लिक्विड है ना इसको आप किसी कंटेनर में कन्वर्ट कर रहे होगे ना, तो ये जहाँ तो बिल्कुल लिक्विड की तरह रहा होगा, डाउन ये जो नीचे जो बह रहा होगा ना वो लिक्विड की तरह हो रहा होगा. लेकिन जैसे ही वो कंटेनर से निकल के दूसरे कंटेनर में जा रहा होगा ना वो गैस बन रहा होगा. बहुत जबरदस्त ये एक्सपेरिमेंट होता है कि लिक्विड ब्रोमीन को जब आप ट्रांसफर करते हो तो इट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस. ओके सर. सर आपने कभी किया है वैसे इसको लैब में? नहीं यार, एक्चुअली जो इस तरह की चीजें होती है ना, जैसे ब्रोमीन हो गई, क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, so they all are gases and you can say that they have low melting and boiling point, so they have, you can say that इनको स्टोर करना बड़ा डिफिकल्ट है. तो इनको स्टोर करना डिफिकल्ट है, that is why they are not available in the labs, right? वो लैब्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती. सर ब्रोमीन लिक्विड जो वो वॉलेटाइल है ना? जी, वो वॉलेटाइल है, बहुत जल्दी से जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसको स्टोर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसको बहुत कोल्ड या तो एरिया में आपको रखना पड़ता है. और दूसरा कि आमतौर पर हमारी लैब्स वगैरह के अंदर फ्रीजर वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें हमारे लिए डिफिकल्टी होती है. सर वैसे ब्रोमीन को जो है वो ग्लास में स्टोर करते हैं ना सर, ग्लास पर, और उसको हीट कर देते हैं टॉप. उसको बंद कर देते हैं, उसको एक गैस ट्यूब में क्लोज करके रखते हैं ताकि उसको जगह ही ना मिले ना निकलने की. जो लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, जैसे आप उसको तोड़ेंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. ठीक है सर. सर ये आप वोलेटिलिटी का मीनिंग रिपीट कर सकते हैं? बेटा वॉलेटाइलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी चीज को रखते हो और वो रूम टेम्परेचर पर उड़ना शुरू होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनको वॉलेटाइल बोलते हैं. ठीक है ना? अगर पेट्रोल को आप देखें तो अगर पेट्रोल अगर आप कहीं गिरा दें, फॉर एग्जांपल आप जो है ना थोड़ा सा पेट्रोल कहीं गिरा दें, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो पेट्रोल वहां से उड़ चुका होगा. तो पेट्रोल इज एक्चुअली वन ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड. इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो वो रूम टेम्परेचर पर उड़ जाता है. तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को वॉलेटाइल कहते हैं. तो गैसेस की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, सॉलिड की बिल्कुल कम होती है, लिक्विड बीच में. समझ गया सर.
Yes, anyone else? Any question बच्चों? नो से एक मिनट। चलें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, और वो बात आपने ये याद रखनी है कि रिएक्टिविटी का इसमें आपने खास ख्याल रखना है। रिएक्टिविटी आपको याद रहनी चाहिए इसके अंदर। तो मैं एक बात यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप इसको अपने पास लिख सकते हो। क्या लिखवा रहा हूँ बच्चों? मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखवा रहा हूँ दैट हाईली रिएक्टिव हैलोजन can displace less reactive halide ion from the salt. राइट जब भी हैलोजन सॉल्ट बनाते हैं, आयन बनाते हैं, तो वो हैलाइड आयन कहलाते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है बच्चों? वो डिस्प्लेस कर सकता है। यू नीड टू कीप रिमेंबर, एंड फॉर दिस यू नीड टू कीप रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज एज वेल। फॉर सपोज अगर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिखा हुआ है बच्चों, तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। वी नो दैट डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव वन and it is the least reactive one. सही है? हैलाइड आयन का मतलब बताएगा? Yes, ये हैलोजेंस हैं जो आपके पास लिखे हुए ना, ये हैलोजेंस हैं। जब ये सॉल्ट बनाएंगे तो there will be negatively charged particles. So for suppose अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है तो it will be fluoride. ब्रोमीन या क्लोरीन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है तो इट विल बी क्लोराइड। ब्रोमीन रिसीव करेगा तो ब्रोमाइड। आयोडीन रिसीव करेगा तो आयोडाइड। सो दे आर आयंस। सो जब ये आयंस बनाते हैं तो ये कहलाते हैं हैलाइड आयंस। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल है, एलिमेंटल फॉर्म में है, ये आपके पास आयंस है। ठीक है? यस सर। अब फॉर सपोज आपके पास क्या था? आपके पास एक सॉल्ट है NaCl। आपके पास क्या है? आपके पास एक सॉल्ट है NaCl। तो इसके अंदर जो Cl है बच्चों वो क्लोराइड है, वो आयन की फॉर्म में। ऐसी है ना? जी सर। This is halide ion। और आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये क्लोरीन का जो आयन है अगर ये डिस्प्लेस हो जाए किसी और दूसरे आयन के साथ, तो उसके लिए आपको क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव कोई इसमें से पास आउट करना पड़ेगा। फ्लोरीन। तो फॉर सपोज मैं इसमें से फ्लोरीन पास आउट कराऊं तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो वो क्या करेगा? सोडियम में से क्लोराइड को निकालकर क्या करेगा? खुद लग जाएगा। सही है? जी सर। और जो क्लोरीन निकलेगा, डेफिनेटली क्लोरीन अकेला निकला है, लेकिन क्लोरीन अकेला नहीं होता कभी भी। अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसको डायटोमिक होना पड़ेगा। तो जब ये निकलेगा तो इट विल बी डायटोमिक। ठीक है? अब आप बोलेंगे सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आप बोलेंगे सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करें? तो बच्चों इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यू कैन सी दिस कि यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर आप 2 लगा दें तो ये क्लोरीन बैलेंस। यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो यहाँ पर आप 2 लगा दें तो इट इज बैलेंस्ड। राइट बच्चों? जी सर, राइट सर। और अब अगर आप इस रिएक्शन को सर वो कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट या भी तो कहलाते हैं ये। सब्स्टिट्यूशन। एक ही बात है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कहला सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। सही है? अब देखें बच्चों, ये इस इक्वेशन में सोडियम क्या कर रहा है मुझे ये बताएं। सर वो डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस हो गया वो। सोडियम तो कुछ भी नहीं कर रहा ना? नहीं, अगर सोडियम अगर क्लोरीन सपोज मेरे पास, हाँ फॉर सपोज अगर मेरे पास होता KBr, ये सॉल्ट होता मेरे पास KBr, ठीक है ना? इस KBr सॉल्ट के अंदर फॉर सपोज मैं पास आउट कराता क्लोरीन गैस, तो मुझे पता है कि क्लोरीन गैस इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड। तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड फ्रॉम द सॉल्ट, तो ये बन जाएगा KCl और ब्रोमीन गैस को ये बाहर कर देगा। ऐसे ही है बच्चों? जी सर। हाँ सर। मुझे बताएं इन दोनों इक्वेशन में क्या सोडियम और पोटेशियम का कोई काम है?
नहीं Oh, सर, no, ये sir. लाइक No, sir. सॉल्ट में काम आते हैं बस। So they are not useful in this equation. So the only useful things over here are actually halogens and halide ions. तो जो रिएक्शन हो रहा है वो हेलोजन की या हैलाइड आयन की वजह से हो रहा है। सोडियम और पोटेशियम कुछ नहीं कर रहे हैं। सोडियम ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो बाद में भी उसने वो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ ही है। पोटेशियम ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, बाद में भी उसने वो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ ही है, उसने कुछ नहीं किया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्लोरीन या ब्रोमीन के अंदर हो रहे हैं। सो रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ या फ्लोरीन के साथ। तो अगर हम इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखें तो डेफिनेटली क्लोरीन इज टेकिंग पार्ट ओवर हियर एंड ब्रोमाइड आयंस आर टेकिंग पार्ट ओवर हियर, राइट। उसके बाद क्लोरीन बन गए क्लोराइड आयन और ब्रोमीन क्या बन गए आपके पास, ब्रोमीन लिक्विड। सो दिस इज एक्चुअली ionic equation. This is actually what ionic equation of this reaction, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर यही काम की चीज है, सोडियम तो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है बच्चों, जी सर ठीक है। तो आयोनिक इक्वेशन आपने इस तरह लिखनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एक और चीज एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, एक और एग्जांपल दिखा दें। मैं ऊपर वाला दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ऊपर वाली एक इक्वेशन है ना, उसको हम कर सकते हैं। बच्चों अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बताएं इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन, वो आपसे पूछे बताएं इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन, तो आप बता सकते हैं because now you are well enough prepared for this. You can see this one of the product is bromine and we know the color of bromine. Yes, we know sir. the color of liquid bromine or elemental bromine. We know that it is reddish brown in color. Red brown. Yes, sir. Reddish You can brown, say sir. that reddish brown solution. You can say that reddish brown solution appears. Right बच्चों? Right जी sir. सर। और अगर आप आयोनिक इक्वेशन की बात करते हैं तो देखें यहाँ फ्लोरीन और क्लोराइड काम का है, सोडियम बीच में कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लोरीन जब क्लोराइड के पास आया तो उसने उसको हटाकर खुद को आयन बना लिया और क्लोरीन बाहर चले गई। राइट जी जी सर। जी बच्चों, कोई सवाल पूछ रहे हैं? यस सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो जिस तरह आपने रिएक्शन किया Cl2 + 2K gives 2KCl + Br2, तो सर इसमें जो KCl है वो उसका जो है सोल्यूशन में कोई भी वो नहीं होगा कलर, इस तरह आप कह रहे हैं रेड ब्राउन कलर। KCl ना, KCl ग्रुप 1 का सॉल्ट है ना। जी सर। ग्रुप 1 के जो सॉल्ट होते हैं बेटे वो कलरलेस होते हैं। ओके सर। ठीक है, चलें इसको अपने पास लिख लें।